So the next topic of our syllabus is the mobile IP network layer या mobile network layer. Okay, so now let us understand what is IP and mobile IP network layer. As we know that the internet network layer protocol IP is the most used network protocol today. This is the third layer of the OSI model for networking through a chain of in-between routers. The mobile IP protocol operates in this layer of the OSI model, that is networking layer, network layer. So, Internet protocol, what is Internet protocol IP? The Internet protocol is the basic protocol at the network layer which employs packet switched data communication or IP provisions for the transmission of the data packets. Each packet is treated independently in IP, which implies that every packet must contain complete destination address information. And this you can see with the IP headers. There are two types of IP protocols that we are using currently. The older version is the IPv4 version 4, and the next version is the IP version 6, IPv6. You can compare them by the headers. Okay. The TCP/IP. So networking for the internet follows a suite of protocols. Means there is a set of protocols that are used for doing the communication on the networking, and this suite of protocol is called the TCP/IP, Transmission Control Protocol and Internet Protocol. So this is a suite of some protocols in which HTTP, FTP, SMTP, etc. some other protocols are included in that suite, the Internet Protocol suite. So the set contains many other protocols besides the Transmission Control Protocol at the network layer. The suite was originally designed to have 4 layers, but has evolved to a 5-layer format. So the functions of the network layer are incorporated into transport layer, and those of presentation layer are performed by the application layer in TCP/IP. So the 5 layers are thus the application, transport, network, data link and physical layer. So the address is called the IP address in internet terminology. The main network layer protocol in the TCP/IP suite is called the IP, Internet Protocol. It provides the connection to the router for transmission. The IP protocol specifies a header known as IP header, and I have already discussed here that you can compare the IPv4 and IPv6 headers and understand why IPv6 is needed for transmission to meet the present requirements. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट थी. एक तो था आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये लेयर क्या होती है. ये लेयर नेटवर्क लेयर पे बेसिकली आईपी काम करता है, पर जो पूरा सेट है प्रोटोकॉल्स का, टीसीपी आईपी का, वो उसमें जो लेयर्ड कम्युनिकेशन है वो पूरी 5 लेयर के साथ काम करती हैं, है ना. इसमें फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट है, और फिर सीधे एप्लीकेशन है ना. जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसका वो एप्लीकेशन लेयर ही परफॉर्म करती है उस पर्पज़ को, ठीक है ना. और जो सेशन लेयर का काम है वो या आपको ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल कर लेती है, ठीक है. तो ये मिला करके पूरा एक सेट है इंटरनेट प्रोटोकॉल का. अब बात करते हैं इसमें कुछ और रिलेटेड टर्म्स हैं इसी के ही. वो क्या है. एक तो आप सुनते होंगे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. वो क्या होता है. देन मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट. ये 4-5 टर्म्स हैं
और टर्म्स को जानना यूँ ज़रूरी है, एक तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं उसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज़ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ये एक एक दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन सब में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसके लिए जो नोट है वो आपको इससे मिल जाएगा और समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी आपने शुरू किया है, अभी हम इसमें डिटेल में जाएंगे तब ये बेसिक टर्म्स आगे क्लियर होने चाहिए। इसलिए सो व्हेन ए मैसेज और पैकेट इज ट्रांसमिटेड टू वन डेस्टिन आईपी एड्रेस ओनली देन इट इज़ कॉल्ड यूनिकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफ़र। मीन्स जब आपको केवल एक ही जगह पर वो पैकेट ट्रांसफ़र करनी है तो पैकेट क्या कहलाएगा, यूनिकास्ट कहलाएगा। पॉइंट टू पॉइंट माने एक जगह से एक आईपी एड्रेस से जा रहा है और उसका जो डेस्टिनेशन है वो भी एक फिक्स आईपी एड्रेस। तो पॉइंट टू पॉइंट गया, जिस एक ने भेजा और एक पर्टिकुलर के लिए भेजा उससे उसको गया, इसको कहते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। When a message or packet is transmitted to a group of IP addresses, then the message or packet is said to be multicast। जब एक जगह से तो भेजा जा रहा है लेकिन पूरे ग्रुप के लिए एक ग्रुप बना करके भेजा जा रहा है तो हम उसे मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन कहेंगे और ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेसेस के लिए वो भेजा जा रहा है। ठीक है, ओके। देन द टर्म मल्टीकास्ट ट्री, व्हाट इज मल्टीकास्ट ट्री? Multicast tree refers to a multicasting source, है ना, multicasting source, multicasting to select multicast nodes at level 1 and each level 1 node then transmit to the multicast node at level 2 and so on. So this hierarchy of nodes is form a multicast tree। Means जैसे आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन करते हो तो आपने एक्स ने वाई को भेजा तो ये हो गया यूनिकास्ट, और आपने ग्रुप में भेजा जिसमें हो सकता है 100-200 लोग हों तो आपने उसमें भेजा, फिर उसने आगे एक और ग्रुप में भेजा, फिर उस आगे जिसने भेजा उसने फिर एक और ग्रुप में भेजा जिसमें 10-20-50 नोड्स हैं। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है तो एक ट्री फॉर्म हो गया, है ना, उसको कहेंगे हम मल्टीकास्ट ट्री। सब मल्टीकास्ट कर रहे हैं, जिसके पास जा रहा है वो भी मल्टीकास्ट कर रहा है, एक ग्रुप में भेज रहा है, फिर जिसके पास गया वो भी एक ग्रुप में भेज रहा है। तो वो जो एक फॉर्म हुआ, हायरार्की जो फॉर्म हुई उसको हम कह देते हैं यहाँ पर मल्टीकास्ट ट्री। सो दिस इज मल्टीकास्ट ट्री। नाउ let us understand broadcasting, when a message or packet is transmitted to all the IP addresses which are for listening, which are set for listening, केवल सुन रहे हैं वो वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उनका रिस्पॉन्स वो करेंगे भी तो रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, वन साइडेड कम्युनिकेशन है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। द IP प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज एन एड्रेस विच ऑल 32 बिट्स आर वंस, सब में 1 कर दें, यानी कि 255 के मोड में भेजा जा रहा है, यानी कि सबको जा रहा है ये। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, एंड दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग इज यूज्ड व्हेन ब्रॉडकास्ट वी हैव टू ब्रॉडकास्ट टू ऑल द होस्ट एंड लिंक्स ऑफ अ राउटर। एक राउटर पे जितने भी कनेक्शन हैं, जितने भी इसमें एक्टिव कनेक्शन, सबके ऊपर भेजना है तो हम इस तरीके का कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो द वो जो था ये OSI में है, IP जो हमने पढ़ी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये अभी हम मोबाइल IP पे नहीं आए हैं। अब जो हम मोबाइल IP पे आ रहे हैं, मोबाइल IP मीन्स कि आप एक नेटवर्क से जुड़े हो, आपको एक IP एड्रेस दिया हुआ है, बट यू आर ए मोबाइल नोड, either you are a laptop holder or you are accessing the internet on your phone. So the mobility is an important factor of such nodes. So the mobile internet protocol, mobile IP, is developed to allow inter-network mobility। अच्छा, मोबाइल हो तो आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी जा सकते हो, है ना, तो ये फीचर भी यहाँ पे जुड़ गया साथ में। तो इसकी IP जो बनेगी, इसका जो IP एड्रेस बनेगा वो भी अलग तरीके से बनेगा, उसकी जो हेडर होगी वो अलग तरीके से होगी, है ना। तो इसको थोड़ा सा अभी हम डिटेल में समझेंगे
और इसके सेपरेट पर्पज़ हैं, इसकी नीड सेपरेट है और इसकी वर्किंग स्टाइल भी बिल्कुल सेपरेट है, जो पहले वाली जो वायर्ड फॉर्म में आप आईपी यूज़ करते थे उसके मुकाबले। So, the mobile internet protocol is a protocol developed to allow inter-network mobility for wireless nodes without them having to change their IP addresses. मीन्स आप एक से ज़्यादा नेटवर्क्स में घूम रहे हो बिना आईपी एड्रेस चेंज करे। आज जो आपका सिम नंबर है या जो आप डिवाइस पे एड्रेस दी हुई है वो बिना चेंज करे आप कई नेटवर्क्स में घूम सकते हो और कम्युनिकेशन कर सकते हो और सब जगह से कम्युनिकेशन होगा। तो ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट आपको चाहिए था, इसलिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ी, मोबाइल आईपी की ज़रूरत पड़ी। सो मोबाइल आईपी इज़ डिफाइंड बाय दी IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। जैसे आपने सुने होंगे और भी ग्रुप्स, IEEE का स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो आप, पीछे आपने पढ़े है ना, या और भी हैं, तो उसी तरीके से IETF भी एक स्टैंडर्ड बॉडी है जो प्रोटोकॉल्स को स्टैंडर्ड देती है। सो मोबाइल आईपी इन्होंने डिफाइन करी थी एंड इज डिस्क्राइब्ड इन द IETF। मतलब इसका डिस्क्रिप्शन जो मिलता है हमको कि ये किस तरीके की होगी, क्या होगा इसके अंदर, वे ऑफ वर्किंग क्या होगी, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, वो सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इन्होंने दी। उसको हम कहते हैं RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन 3344। ये डॉक्यूमेंट का नंबर है जिस डॉक्यूमेंट में इस मोबाइल आईपी के बारे में इन डिटेल इन्होंने बना करके और स्टैंडर्डाइज करके रखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट का नंबर है। हर प्रोटोकॉल का अपना एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हमने पीछे IEEE के 802 के पढ़े तो वो भी सब डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक डॉक्यूमेंट है ना। सो एवोल्यूशन ऑफ आईपी का एवोल्यूशन कैसे हुआ? व्हेन ए यूज़र कंप्यूटर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ असाइंड ए न्यू आईपी एड्रेस एट द न्यू होस्टिंग सबनेट। हर नए सबनेट में जब वो एंटर करेगा तो उसको एक नया एड्रेस मिलेगा, to which the service providing router provides connectivity to the internet। फिर उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए उसके राउटर से, उस नेटवर्क के राउटर से। A mobile node can be considered to be a computer on a move from one area to another। The reason for the use of a new mobile IP protocol instead of existing IP protocol by the mobile nodes are as follows। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या इसकी ज़रूरत क्या थी से, तो उसके कुछ रीजंस हैं जो यहाँ पर लिस्टेड हैं। पहला है जिसमें कि नीड फॉर एनहेंसिंग आईपी नेटवर्क कैपेसिटी। पहली चीज़, जो नेटवर्क था उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसका एरिया बढ़ाने के लिए, उसके कवरेज को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग आईपी प्रोटोकॉल बाय अ लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल नोड्स, MN शॉर्ट में लिखा है, विल लीड to decrease the network throughput unless the capacity of existing IP network is scaled up, है ना, to cater to such large number of users। तो अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो कुछ को हम दूसरे नेटवर्क पर डाल देते हैं। इस तरीके से हम अपने लोड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ एक तो ये थी IP नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाने की। दूसरा, नीड फॉर अपग्रेडिंग कैपेसिटी ऑफ राउटर्स की कैपेसिटी को अपग्रेड करना, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर ऑफ द आईपी नेटवर्क्स, तो उसको अपग्रेड करना, और मोबाइल नोड्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हाइल यूजिंग दी existing IP protocol। New protocols are required at lower layers, a data link and physical layer। When a mobile node moves from one service area to another, the use of existing IP protocol and assignments of the new IP addresses is impractical due to the following reasons। तो जो पहले वाला सिस्टम था उसमें जो एक IP एड्रेस दे दिया, अब आप एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं तो उस नेटवर्क के राउटर के पास आपका IP एड्रेस नहीं है, IP एड्रेस नहीं, तो आपको कनेक्टिविटी इंटरनेट की नहीं मिलेगी। तो वो क्या कर रहा था कि दूसरा नेटवर्क उसको फिर सेपरेट IP देता था, हर बार नया एड्रेस लग रहा था। नया एड्रेस लगने का मतलब पुराने कम्युनिकेशन को यहाँ पर कैरी नहीं कर सकते आप। तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल था। इस चीज़ को तोड़ने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये नई व्यवस्था लाएगी, दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल। पुरानी वाली यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब क्या होगा कि जो एक IP एड्रेस आपको मिल गया, वही IP एड्रेस के साथ आप इंटर नेटवर्क्स कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाओगे पर आपका IP एड्रेस चेंज नहीं होगा। वो वहाँ देख लेगा राउटर कि ये एक मोबाइल IP है
मोबाइल आईपी अलग तरीके का होता है, तो उससे देखने के उसको फिर नया आईपी एड्रेस नहीं देगा, उसी आईपी एड्रेस को आपकी असाइन कर दिया जाएगा उस नए नेटवर्क में, और आपको ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे कि पुरानी कम्युनिकेशन जो आपकी चल रही थी वो कैरी ओवर हो जाएगी, वो चलती रहेगी, वो ब्रेक नहीं होगी। सो और जो रीजंस थे वो एक तो थी सिक्योरिटी नीड्स, बार बार आपको नया आईपी एड्रेस देना और पुरानी कम्युनिकेशन ड्रॉप होना, तो आपके डेटा की सिक्योरिटी भी जाती थी, और हर एक को आपकी डिटेलिंग आपको करनी पड़ती थी, जो आईपी हेडर के अंदर होती थी वो हर एक राउटर के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो एक जगह रजिस्टर हो गई वही रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन आगे कैरी ओवर होती रहती है, तो उससे बार बार आपको डिटेल नहीं देनी पड़ती, तो सिक्योरिटी आपकी बनी रहती है, आपको न बार बार पासवर्ड और वो सब असाइन नहीं होगा, जो एक बार हो गया फिर आप इंटर नेटवर्क्स कम्युनिकेशन कर सकते हो, है ना, और आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट दी नीड फॉर नॉन ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम हायर लेयर्स। तो ऊपर की जो लेयर्स थी उनको सब कुछ नहीं बताने की ज़रूरत थी, और आप काम कर सकते थे नेटवर्क के अंदर, और पुराने वाले में आपको बताना पड़ रहा था, ट्रांसपेरेंसी आपकी जा रही थी, तो इस वजह से इस नए मोबाइल आईपी प्रोटोकॉल की आवश्यकता थी। ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट है इसमें कि ये काम कैसे करता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।